Recently, I came across an Instagram reel that said to live a creative life is to make every life's decision based on curiosity. Here we have an artist today in our studio who has made a big life's decision based on curiosity, a passion to pursue her dreams. We have Alka Beniwal here, a dear friend of mine, a doctor who has turned into an artist full time. I would like to discover about why this transition happened and about her art, the process behind, and everything about art and colors today. Hi, Alka. Hi, Vinu. I'm so happy today here. We have had so many conversations before, but there are some questions, some points that we have never discussed. We chat as friends, but then I would really like to know more about your creative process today so that people who are listening to this, watching this, will also benefit from your thought process and the stories behind all your paintings and the colors and everything. First thing I would like to know, how did a doctor become an artist? I feel it was my brave or a very good decision. I never ever made a decision like that. तो actually मेरे father साहब जो थे वो engineer हैं and he want that we three become a engineer. तो मी माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, तो उन्होंने घर के बाहर एक एरिया रखा था जिसके ऊपर वो चाहते थे कि लिखा जाए इंजीनियर्स हाउस. तो like me and my brother broke his dream, and I'm very happy that I turn into an artist because I can't see the pain being a doctor and see the pain, patient's pain. I'm a cry baby and I think मैं जब देखूंगी तो मैं तो रोने ही लग जाऊंगी, मैं उनके साथ ही रोने लग जाऊंगी. So I'm very happy, and because I'm very good into happy with my playing with my colors and writing poems and all. So I'm happy with this journey. All merge, all the creativities come so naturally. So I'm so happy. Turning into an artist is not an easy choice in the later part of life. Yeah. You know what I mean? Yeah. Not everyone understands what is it to be an artist and do some other job. Right. And how did your family take it? Actually, I'm the first artist in my family. So मेरी family में like all the people are in government jobs. My sister and my father engineers, and my brother is a businessman, but all other peoples are in a civil services. And they are a scientist and engineers and teachers. So everybody in my initial stage, everybody don't even appreciate my decision. They were so against that why you are wasting your time, what you will do with this. एंड उनके हिसाब से आर्ट जो है हॉबी है, ये एक प्रोफेशन नहीं हो सकता. दे थिंक कि इसको खरीदेगा कौन, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, हु विल बाय. सो ओवर अ पीरियड व्हेन आई स्टार्टेड सेलिंग एंड नाउ दे अंडरस्टैंड. So now the family also supports me, and they also very happy. So yeah, things change with time. Being an artist is one thing, Right. and being a woman artist is another one. How is art world treating women? Like, how is it to be a woman in the art world? Actually, the historically art world is male dominated field. Okay. And even we can talk about other fields also. Most of all the fields are male dominated, right? It's tough there also. Very tough. Okay. Yeah. Because I wanted to understand. See, art and women, we have very good relationship with art. We start to draw column, like in South India, we start to draw column right from our childhood, right outside our entrance, doorway, every single day. That's when we start drawing. Yeah. So actually we are learning from mothers, we are learning from grandmothers, from generation we are getting, and that kind of folk art. And number of folk arts we know, right? Yeah. But still, once we are going into and start working as a professional in that field, what happens, there are many stereo faces are there, okay? So they comes and they ask you, you can't work in a tougher subject, you can't work in a dark theme, and you can't take a political aspect, and you can't work on a political subjects.
So people are thinking, the men's are thinking, senior artist or a very, well known artist means they need to work on that particular, side. Oh. And many people advise me that women are soft by nature. Okay, they are very happy, and they create that happiness in the family also. We need to understand it's not important to always pointing out or discovering a only bad side. We can show the happier or very colorful side also. And still be famous. Yeah. Yeah, it's very easy, and its possibilities are endless. Exactly. We can we once we start working, my recent series is endless poetry, right? So in the endless poetry, what I am showing, basically my artworks is there is a dreaming lady center character. I did many series around dreaming lady, and across like the deep, love potion, and moonlit nights, and Anvesha. The most of the series are romantic and in love. And my new series, I'm trying to touch the nature, trying to connect a woman can, how we can support nature, how we can support animals, how we can support nature to grow with us. क्योंकि जिस तरीके से बिल्डिंग्स बन रहा है, जिस तरीके से कंक्रीट जनरेट हो रहा है, राइट, वी हैव टू समवेयर टेक ए स्टैंड टू द ग्रीन वर्ल्ड ऑल्सो, राइट. तो अब जो मेरा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, it's very happy also, okay. Very much colorful, but still somewhere I'm trying to showcase a very mature theme. And this time and next time also, my next series is also, I will definitely reveal in my next solo exhibition. So I'm working on a really nice subjects. And in these years, I take very right time, right decisions in my life. First I started on a canvas, and now what I feel, figurative artist can earn from many resources. Like I can earn from many resource. I developed already 3-4 resources I already developed. Like I can make a rough sketch and the final sketch. So I can sell my sketch. After that I can sell my painting, canvas on painting. Last 4 years I'm working on a bronze sculptures and fiber sculptures also, and tapestry. Last 2 years I'm working on tapestry. So right now nobody is helping me. I'm just trying to do all the things by myself only, because मैं उसका रिजल्ट देखना चाहती हूँ कि जो भी मैं प्लान कर रही हूँ वो कैसा, उसका आउटकम कैसा आता है. तो लाइक there are a lot I am planning, and a lot more different mediums and surfaces I am planning. So different resources to earn. So yeah. Lovely. I'm so happy that you touched the point about earning with art, because mostly the families say no to someone who wants to turn into a full-time artist is because they think it's not a real job and you can't earn money, right? But from what you say, I see a clear plan of the methods and means to earn. But I think there are many artists who still struggle to find out those avenues to make money. What would be your advice for them? Like, they think art is a separate thing, business is a separate thing. These two things don't merge is the general perception. Like, what do you think about this? Actually many people thought that. और बहुत सारे लोग ये बात करते कि पैसे की बात मत करो, आर्ट कर रहे हो, तुम आर्टिस्ट हो, तुम पैसे की बात मत करो. अगर आप अपना फुल टाइम किसी चीज़ पे प्रोडक्ट को बनाने में दे रहे हो, किसी आर्ट को क्रिएट करने में दे रहे हो, तो अगर आप उससे अर्न नहीं करोगे तो आप खुश कैसे रहोगे? आप अपनी फैमिली की टेक केयर कैसे करोगे? तो वो जो अटैचमेंट और वो जो थिंकिंग है वो मुझे समझ नहीं आती, राइट. बट व्हाट आई फील कि एक इंसान को अपना आर्टवर्क को पहले पक्का करना बहुत ज़रूरी है. इन माई इनिशियल स्टेज आई वॉज वर्किंग इन अ माचिस का डब्बा. माई स्टार्ट इज़ विद लाइक अ फ्यू कैनवस, few colors and a small corner Okay. of my house. After that, the corner take a whole room.
Okay, and after that this converts my whole house converted into my studio, and now I have a separate studio and I am planning my separate foundry. तो ये जो डेवलपमेंट था, इसके लिए जो मैंने किया और जो मेरे लिए वर्क किया, तो मैं स्पेशली बात करूँगी फिगरेटिव आर्टिस्ट की, क्योंकि मुझे उसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है. तो शुरुआती दिनों में, इनिशियल डेज में, बिगनर फेज इज़ कि आपका स्टाइल वर्क क्या है. Get the style right. राइट. सो अपना एक स्टाइल वर्क डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. और पीपल आर सेइंग ओके फिगरेटिव आर्टिस्ट मीन्स एक ही टाइप का नोज़ है, आईज है, लिप्स है, तो हम उसमें क्या डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं. सी योर एंड माई फेस आर सो मच डिफरेंसेस आर देयर, सो वी कैन क्रिएट एनी थिंग. वॉट एवर द पर्सन इंस्पायर यू द मोस्ट, यू जस्ट टेक एज ए सब्जेक्ट एंड स्टार्ट वर्किंग. जब तक आप 100 पेंटिंग नहीं बना लेते, तब तक आपका काम पॉलिश ही नहीं हुआ है. True. राइट. उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमने उसको पक्का ही नहीं किया. सो वॉट आई हैव डिड इन माई अर्ली स्टेज फॉर 3 years, नो राइट नो लेफ्ट, जस्ट स्ट्रेट. Okay. ठीक Just है? get the job, get your work perfected. राइट. तो मैंने वो जो 3 years थे, उसके अंदर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया. इन 3 years people see the very difference in my paintings. I have seen it personally. I have seen A lot the whole of difference. I have seen the whole journey that you are talking about today. I have seen your development right in front of my eyes. तो ये आसान नहीं था कि 3 साल के लिए आप एक रूम में कैद हो जाओ, आप एक घर में कैद हो जाओ और आप किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो. सी व्हाट द पीपल आर थिंकिंग कि सेल करने के लिए और हमें कुछ भी करने के लिए हमें जाके कनेक्शंस बिल्ड करने होंगे, हमें गैलरीज को विजिट करना होगा, हमें ये करना होगा, हमें वो करना होगा. अगर आप सिर्फ वही करते रहोगे तो आप काम कब करोगे. Good question. राइट. तो अगर आप कोई भी एक एग्जीबिशन विजिट करते हो, मेरे पास तो चांसेस ही नहीं थे, मुझे अपना बच्चा संभालना था. राइट. आई एम द ओनली पर्सन हु टेक केयर माई किड. राइट. सो माई हस्बैंड इज लाइक ही गो इन द मॉर्निंग एंड ही कम इन द इवनिंग एंड ही जस्ट लाई डाउन ऑन अ सोफा, हल्का वाटर, डिनर. राइट. सो एक आदमी के लिए रेस्ट का एक होता है कि ही कैन टेक अ रेस्ट, बट वुमेन्स आर वर्किंग 24/7. राइट. So in my beginning 3 years, I was just working and working and working. मैं अगर मुझे एक भी संडे मिला है जिस दिन की हस्बैंड टेक केयर कर सकते हैं मेरे बच्चे की, I use that. I'll go and visit any gallery, whatever the show is going on there. I'll try to learn. I try to see the details of the work. I try to see the strokes, how they are working, what's their style, how they are so they can make a so mature work, right? So I used to do that, and after one visit, I used to work for 15 or 20 days without thinking anything. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कहीं से भी इंस्पिरेशन ले रहे हो तो उस इंस्पिरेशन को आप अप्लाई तो करो. यू हैव टू गेट इन टू प्रैक्टिस. जब तक आप एक भी ब्रेक, आर्ट फील्ड एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें आपके हाथ को सेट होने में बहुत सालों लग जाते हैं. एक इंसान को एक मैच्योर आर्टिस्ट और एक सेलिंग आर्टिस्ट बनने के लिए पूरी उम्र निकल जाती है. True. तो पूरी उम्र ना निकल जाए और सफ़ेद बाल ना आ जाए, उससे अच्छा है कि आप पहले ही सीख जाओ. तो ये बेटर है कि आप वो पहले 3 साल दे दो. राइट. अपने आर्ट को. तो वो 3 साल आप कैसे दोगे कि आप सिर्फ फोकस होके आप काम करे जा रहे हो. और उस दौरान मैंने 100 ऑफ पेंटिंग्स बना दिए थे. वो जो 100 ऑफ पेंटिंग्स बने, उनके साथ ही मेरा काम अपने आप अच्छा होता चला गया. Practice makes everything perfect. हाँ. और इसके लिए एक जो चीज़ मैंने किया वो ये था कि मैंने अपने घर में सब जगह अपने आर्ट वर्क लगा रखे थे. मैंने अपने स्टूडियो में, जब मैंने अपना स्टूडियो लिया, हर तरफ मेरे आर्ट वर्क रहते हैं मेरे घर में. आपने विजिट किया, राइट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डे नाइट अपने आर्ट वर्क को देख रहे हो. आपको अपना पहला क्रिटिक बनना बहुत ज़रूरी है. Before you are showing your artwork to anybody and you are getting feedbacks from them, you need to be your own critic first. तो एक वो आपने सुना होगा त्राटक ध्यान.
हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हम ज्योति के सामने बैठ के और हम ध्यान लगाते हैं, राइट। थॉट्स आ रही हैं, जा रही हैं, और हम इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, राइट। तो वो ही एक, अगर आपको एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट, एक सक्सेसफुल इनफैक्ट फैशन डिज़ाइनर और फोटोग्राफर और एनीबडी, आपको जो कुछ भी अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल करियर डेवलप करना है और आप एक क्रिएटिव फील्ड से हो, तो अगर आप उस फील्ड से हो तो आपकी वो डमी पे वो बहुत सारे ड्रेसेस होने चाहिए चारों तरफ, ताकि आपको अपनी कमियां दिखें। जब तक आप अपनी कमी को नहीं देख सकते, आप उसको कैसे आप उसको ठीक करोगे? Also, Alka, there is another one general trait about artists and people who are in the creative field, right? That there is no discipline. Creative people, they don't adhere to deadlines. They don't have a discipline of starting their work at a certain time and finishing it at a certain time. And, these are the general traits that the world identifies with us. So, what is your take on this? वी नो, पिछले इतने टाइम में मैंने बहुत सारी, हर साल मैंने एक दो गैलरीज को अपने साथ में कनेक्ट किया और मैंने जोड़ा है। वो इसलिए कर पाई मैं क्योंकि मैं अपने टाइम का बहुत पक्का हूँ, राइट। कि मुझे लगता है कि अगर पहले से पता होता है, हम 1 मंथ 2 मंथ का टाइम देते हैं किसी भी क्लाइंट को। अगर कोई भी वर्क है जो एक कमीशन वर्क है या डिज़ाइन वर्क है जिसको कहेंगे, या तो एक आर्टिस्ट का आर्ट वर्क गैलरी से ख़रीदा जाता है, तो वो देखते हैं और उसे पसंद करके ले लेते हैं, या फिर उसका ऑर्डर आपको दिया जाता है। जब एक ऑर्डर आता है तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो डिमांड है उनकी, आपका, वो आप ही का आर्टवर्क चाहते हैं, लेकिन उनकी जो थॉट है, उनका जो एक, उसके साथ आप कैसे अलाइन करोगे। तो उसको प्रोसेस करना, और जब तक मेरा स्केच डन नहीं हो जाता क्लाइंट के साथ में, तब तक तो मैं टाइम ही नहीं देती। और जब एक स्केच मेरा डन हो जाता है क्लाइंट के साथ में कि या यू कैन स्टार्ट वर्क ऑन इट, उसके बाद में मैं बोलती हूँ 1 मंथ 2 मंथ, राइट। और जब वो 1 मंथ और 2 मंथ है, उससे 10 डेज बिफोर मेरा आर्टवर्क रेडी होना चाहिए, क्योंकि वो शिपिंग एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम। और इसमें एक चीज़ ये लर्न की है कि अगर आप बहुत क्लियर और बहुत एक गुड रिलेशन गैलरीज के साथ मेंटेन नहीं कर पाते हो क्लाइंट के साथ में, तो वो फिर वापस नहीं आते आपके पास में। इस दुनिया में बहुत क्राउड है, बहुत आर्टिस्ट भरे पड़े हैं, उनको ज़रूरत नहीं है आपकी। अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर सकता किसी भी हाल में। तो हाँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, और टचवुड एक प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं, जैसे राइट, कि हम बात करते हैं कि आप आर्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, तो आप कैसे आर्ट पे इन्वेस्ट करोगे? आप कैसे एक प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट को समझोगे? तो आप तभी समझोगे ना जब वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है, और आपको उसका फ्यूचर थोड़ा किसी हद तक दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। Yeah, that's true. I also always say that, when you have discipline, you become like sun in the sky. Or otherwise, how much ever you are talented and you don't have any discipline, then you only become a star. You come there, twinkle for some time, and then you vanish. So, yeah, discipline is one thing that I always vouch for. Even if talent is more or less here and there, you can always practice and get it. Right. But you have to practice, for which you need to sit and work. It's more than doing personal brand development. That is all there in this world. PR is very important. Yeah, at this PR point, I really want to talk about that too. Please. How is doing PR for yourself? How important is doing your personal PR? So personal PR is very important for a woman, especially. It's very important because because we are less in the field. We have less opportunities. कि मेरे प्राइमरी ईयर्स में मैंने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ की. आई वॉज सीकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, राइट. आई वॉज ट्राइंग टू मेल ऑल द पीपल, मैसेज ऑल द पीपल, गिव मी अ चांस, राइट. बट इट्स नॉट ईजी टू गेट अ चांस. अगर आपका आर्टवर्क स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है तो गैलरी आपको चांस नहीं देगी. और हर गैलरी जो है वो अलग अलग आर्टिस्ट के साथ काम करती है. कुछ गैलरीज है फिगरेटिव आर्टिस्ट के साथ काम करती है, कुछ रियलिस्टिक के साथ में करती है, कुछ सिर्फ लैंडस्केप्स के साथ काम करती है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स के साथ में काम करती है. तो यहाँ पे बहुत अलग अलग फील्ड और अलग अलग गैलरीज और उनके अलग अलग स्टाइल वर्क हो जाते हैं. कुछ गैलरीज होती है जो मिक्स करती है. तो
और गैलरी से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए और एक बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही बड़ा नाम है किसी गैलरी का, तो हालांकि मेरे भी टारगेट्स वही हैं, हर किसी के टारगेट्स वही हैं, तो उनको एवरीडे इतने मेल्स आते हैं कि वो आपके आर्टवर्क को कहाँ कंसिडर करेंगे। आप एक वुमन आर्टिस्ट हो, उसके साथ में आप कितना टाइम दे पा रहे हो। मैं मॉर्निंग 5 से लेके नाइट 10 तक मैं मतलब लाइक आई एम बिजी, मॉर्निंग 5 AM टू 10 PM तक। तो मैं उस टाइम को, हाँ रेस्टिंग आवर्स सबको चाहिए राइट, लेकिन उस टाइम के अंदर मैं एक सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं किया मैंने, टचवुड अब तक। मुझे लगता है कि बहुत सारी फीमेल आर्टिस्ट जो हैं बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है, मुझसे भी अच्छा ग्रो कर सकती है, क्योंकि मैं तो इस फील्ड से ही नहीं थी राइट। आई डोंट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन इन दिस फील्ड राइट। आई जस्ट ट्राई, आई एम सीकिंग फॉर एनी kind of I get any inspiration, Knowledge from any knowledge, any type of, like I'm sitting with you, I definitely get something. तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छे लोग मुझसे जुड़े हैं, और बस ये कोशिश रहती है। दूसरा एक, आई एम रियली बैड into conversation with the people, so it's very important in this field. To selling your artwork, it's very important that how you communicate with the people, and I'm trying to improve. And I always say that mostly artists, I mean, I've said this in the previous show also, that we're little introverts. There is an introvert child which is inside, which still has that hesitation to go and ask people to buy. Asking someone to buy your stuff is so tough. So It's an art by itself. Yeah. And how do you mark yourself from 1 to 10? Where do you rank in terms of selling art? Selling, touchwood, I'm selling good, but and because of that only my family is supporting me right now. Okay. And I'm able to represent India in an international art fair, so I'm happy for that. And somewhere I tried, I create a unique style, and I work on that for repeatedly, same thing. I'm just repeatedly, just the same face, same body. My first painting is just a face, and almost 2 years I just able to make only portraits. Okay. So I have learned over a period to work on a half body, after that full body. So I'm from even my medical field. I know very well anatomy, and art field also the people knows anatomy. I know very well, but still I was many mistakes because I'm not get the formal education. It takes long time. Sketching is a basic. Once you sketch every day 10 to 15 sketches, you practice every day, that can change your because once you are sketching every day, you understand the light parts and the dark parts, and you can able to create a paper into 3D image. And how we spoke about galleries, and how does doing exhibitions help? Exhibitions help, but for any artist who really want to good in the field and who want to be successful artist, it's very important just not to display with the group exhibitions. क्योंकि group exhibition में आप hardly 2-3 artworks display कर पाते हो, और आप 2-3 artworks करके relax बैठ जाते हो कि ठीक है चलता है, मैंने 3 काम बनाए थे, बहुत सुंदर लग रहा है। उसमें क्या होता है कि हो सकता है आप 10-15 आर्टिस्ट के बीच में आपका काम अच्छा है, लेकिन जब तक आपका गैलरी 20-25 आर्टवर्क से एक साथ नहीं आपने फिल किया है, तब तक आप समझ ही नहीं सकते हो। और वो जब 20-25 आर्टवर्क्स आप एक साथ एक विदाउट टेकिंग अ ब्रेक आप बनाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका आर्टवर्क इम्प्रूव हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करते हो। ईच एंड एवरी आर्टवर्क, फर्स्ट आर्टवर्क जैसे ही फिनिश किया, आप दूसरे आर्टवर्क में आप इम्प्रूवमेंट खुद आप जज कर सकते हो। और उनको सब जब आप सामने देखते हो गैलरी में, आर्टवर्क को कभी नज़दीक से नहीं देखा जाता, उसको दूर से देखा जाता है। जब आप दूर से देखते हो और जब उसका पूरा आप ऑल ओवर कैनवस को देखते हो और आप समझते हो कि हाँ ये फिगर है, ये कंपोजिशन है, और ये कंपोजिशन के साथ ये कलर्स हैं, और ये कितना सेटल है या नहीं है,
तो वो आपकी एक मेन आपका मतलब जंप कर सकता You है can आपके assess your work. हाँ Also, I think when you have 15-20 work of yours displayed in a row, people who come and see your work will also get your style. Right, Only then right. they will understand. Just Right. by seeing 2-3 paintings, they are not going to get who you are and what you are expressing, right? तो जो भी सीनियर आर्टिस्ट हैं आप देखोगे वो सभी सीनियर आर्टिस्ट के आप सोलो एग्जीबिशंस देखोगे तो नंबर ऑफ सोलो एग्जीबिशंस आपको उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। और जो आर्टिस्ट शायद कहीं बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं वो फिर ग्रुप एग्जीबिशंस में ज़्यादा अपने आप को फोकस करते हैं, क्योंकि कहीं या तो वो कहीं और एंगेज्ड है, उनका इनकम का रिसोर्स कुछ और है, जहाँ से उनको इनकम जनरेट हो रही है वो थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, तो वो उतना बेटर नहीं कर पाते। Okay, but these exhibitions are like investment, no? इन्वेस्टमेंट, You इट्स invest- अ बिग इन्वेस्टमेंट, you invest and- रियली बिग इन्वेस्टमेंट। आप देखो एक लाइक आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर टुडे, आई स्पेंड लाइक यू नो, तो उस जो मैंने स्पेंड किया है मेरी कोशिश है कि वो मैं वापस मुझे मिले, राइट? Understand. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, It's like how we showcase in fashion weeks. राइट? You invest and you showcase, and then you want to get whatever you have invested back. राइट। तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे ट्रस्ट बिल्ड करोगे। एक ट्रस्ट बिल्ड करना आपके क्लाइंट में, आपकी गैलरीज जो आपके साथ वर्क कर रही है, जो भी आपके साथ कनेक्टेड है, जो आपके क्रिटिक्स हैं, जो आपकी आर्ट वर्क में इंटरेस्ट शो करते हैं, उनके साथ में एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। जितने पोर्टफोलियो पे आपका आर्ट वर्क है उनकी प्राइसिंग में अगर डिफरेंसेस हैं तो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। And how do you price? Like सो द प्राइस that's one thing I Price- want to know. How do you price art, man? so price see you know once अगर हम बात करें कि नहीं एक आर्टिस्ट ने एक डॉट लगा दिया है वो लाखों का क्यों बिक रहा है, वो क्यों? एक्सपीरियंस है। Tell me something. These days, like maybe in 15-20 years ago, artists can be artists. They can create art. They can attend events and they can exhibit and everything. But these days, being active on social media is very important. It's very important. And do you think it takes a lot of your time out of creating actual art? Why I'm asking you is this is a problem with me. Right? I'm like, do I post today or do I do my work? Right? But that is important. How do you manage this? Tell me. सी एक्चुअली वी नो अभी तक मैंने जो अपना एक सोशल मीडिया पेज बना रखा है या फिर मैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, तो वहाँ पे मैं इतना सोच समझ के अभी तक मैं नहीं कर रही थी, बिकॉज़ अभी तक मेरा एक बहुत ही लिमिटेड विज़न था। अब मेरा विज़न बहुत बदल गया है। जैसे ही मैंने अपना शिफ्ट जो गुड़गांव से जयपुर लिया है, मेरा विज़न बहुत बदल गया है। तो अब तक मैंने सिर्फ अपना एक पर्सनल पेज क्रिएट किया था। तो वो जो एक आप कहोगे कि आपका एक आर्ट स्टूडियो पेज है, एक आर्टिस्ट पेज है, वो शायद हो सकता है आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और लेकिन ये जो मैंने पर्सनल पेज बनाया, क्रिएट किया, इसमें मैंने इतनी चीज़ें ऐड करी कि जिन्होंने मेरी पर्सनालिटी को बहुत हद तक बदल दिया। मैंने लाइक वर्किंग वीडियोस डाले, मैंने फुल्ली फिनिश आर्ट वर्क के फोटोग्राफ्स डाले, स्केचेस डाले, मैंने यू नो डिफरेंट मीडियम्स के साथ में मतलब वर्क करते हुए वीडियोस डाले। इनफैक्ट धीरे धीरे जैसे वो जो एक वैक्यूम पीरियड आने लगा आर्ट वर्क के बीच में, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक तोड़ देता है आर्टिस्ट को, राइट? तो क्योंकि एक वैक्यूम पीरियड है, दूसरा आपकी सेलिंग जो है वो कभी है तो लाइक बहुत ज़्यादा है और सडनली आपको 1-2 मंथ्स के लिए सिंपली वेट करना पड़ रहा है, राइट? तो अभी क्योंकि मैं उस स्टेज में अभी शायद नहीं हूँ कि मैं एवरी मंथ बहुत ज़्यादा सेल कर रही हूँ। तो किसी मंथ जो सेल होता है वो आपका 4-5-6 पीसेस भी निकल जाते हैं और कभी आपको 1 मंथ के लिए पूरा वेट करना पड़ता है कि आप क्या करोगे। तो वो जो वेटिंग पीरियड है उस टाइम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया पोइट्री करके, राइट? तो जब मैंने पोइट्री करना स्टार्ट किया और अभी जो मैंने अपनी एक नई सीरीज़ बनाई है एंडलेस पोइट्री, वो उसी से बहुत हद तक इंस्पायर्ड है।
और मैंने बहुत डीपली अपने वर्क को समझा इस टाइम में। और अब मैं जो थीम पे मैं काम कर रही हूँ उसमें हैप्पीनेस भी है, उसमें कलर्स भी हैं और उसमें ब्यूटी भी है, साथ में उसमें एक मैच्योरिटी भी है। तो कहीं ना कहीं मैं उन एंगल्स को भी शोकेस कर पा रही हूँ। वो मेरे इतने सालों की लर्निंग थी। मुझे बहुत वक्त लगा ये समझने के लिए कि कंपोजिशन कैसे होगी, एक मैं सीरियस मुद्दे को कैसे उठा सकती हूँ, एक मैं पॉलिटिकल मुद्दे को, ग्रीन वर्ल्ड को मैं कैसे दिखा सकती हूँ कि हमारे ग्रीन वर्ल्ड की कितनी ज़रूरत है। तो वो दिखाने के लिए बहुत साल लगे। और वो जो पोइट्री जब ऐड हुई, और उस पोइट्री में कहते हैं ना कि कवि जो है वो इंसान को एक फुटपाथ से आसमान में भी ले जाता है, इंद्रलोक में ले जाता है। वो आपको अप्सराओं में घुमा देता है, राइट, बादलों में बिठा देता है। तो ये भी एक बहुत नेचुरली आया। और जैसे ये नेचुरली आया, जब मैं उसको लिखने लगी तो वो जो क्रिएटिविटी थी वो, यार मैं इसको कैसे कैनवस पे उतार सकती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है। और मुझे लगता है ये जो चेंज है ये आगे जाके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनने वाला है। Amazing. And it's a very unique combination also. Right? That's what makes you. And now we are talking about poetry. Tell us about the girl in all your paintings. Who is she? तो जैसे मैंने बोला था कि बहुत इजी है फिगरेटिव आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि मैंने इसी फील्ड में इतने सालों प्रैक्टिस की है। हम कहते हैं कि एक जैसे नाक वगैरह हैं, लेकिन हमारे दोनों के फेसेस अलग हैं। हमारे लिए इंस्पिरेशनल हम किसी से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वो इंसान जो हमें सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है या जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा डीपर कनेक्शन फील करते हैं, तो मेरे लिए वो मैं हूँ जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा डीपर कनेक्शन फील करती हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपने आप को, मतलब अपने पेंटिंग्स में, मिरर में, एक आर्टिस्ट को बहुत ज़रूरी है कि वो हर दिन शीशे के सामने बस खड़ा हो जाए और अपने आप को देखे, कम से कम 10-15 मिनट दे अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को अप्रिशिएट करे। जैसे ही आप ये सब चीज़ें करने लगते हो ना, ऑटोमेटिकली सब चेंज होने लगता है। Oh, how lovely. This is really nice. Stand in front of the mirror and appreciate yourself for quite some time, because being in the field of creativity or art or design, you don't get appreciated quite often. Yeah, It's very rare. it's very Even rare. if you do amazing work, a work that looks good to you may not look good to other persons. So getting appreciation Very tough. from outside is tough. So let's do it ourselves. Amazing. No, I love it. I love it. So the girl is you. And how do you come about the colors that you use? पहले के कुछ आर्ट वर्क्स थे जिन पे मैंने बहुत ही मैच्योर वर्क करने की कोशिश की, क्योंकि आप जब बिगनिंग स्टेज में होते हो ना, आपको यूँ लगता है कि जो सीनियर आर्टिस्ट कर रहे हैं कैसे उनका आर्ट वर्क इतना अच्छा लग रहा है, तो लेट्स यूज़ ब्लैक, ब्राउन एंड दिस दैट कलर्स। स्लोली मुझे क्या समझ में आया कि जो पीपल आर्ट वर्क को एक्चुअल में कलेक्ट करते हैं, या तो आप एक म्यूज़ियम आर्टिस्ट बनते हो, या आप एक गैलरी आर्टिस्ट बनते हो जहाँ पे आपका आर्ट वर्क सालों सालों डिस्प्ले रहता है, या आप एक बेस्ट सेलर आर्टिस्ट बनते हो। तो बेस्ट सेलर आर्टिस्ट आप जितने भी इंडिया में देखोगे वो बहुत ही कलरफुल आर्टिस्ट है। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक जो बायर है, एक जो क्लाइंट है, वो एक्चुअल में आपसे क्या खरीदना चाहता है। वो आपसे खरीदना चाहता है हैप्पीनेस, वो आपसे खरीदना चाहता है, वो अपनी लाइफ में कलर्स ऐड करना चाहता है, और आप उसको एक ब्लैक एंड वाइट और आप एक बहुत ही ऐसा डार्क दे देते हो जिसको उठ के वो सुबह उठ के रोए, शाम को उठ को उसको देख के डिप्रेस हो जाए। तो आप उसकी लाइफ को अल्टीमेटली, और जितने भी मतलब क्लाइंट्स मुझसे जुड़े या जिन्होंने भी मेरा आर्ट वर्क अब तक अपने कलेक्शन में लिया, वो बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल पीपल थे। वो बहुत ही ज़्यादा जो अपना गॉड गॉडेसेस में या जो माइथोलॉजी में बहुत बिलीव करने वाले लोग होते हैं, मोस्टली वो लोग आर्ट वर्क्स को कलेक्ट करते हैं। और फिर उनका जो होता है कि वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं कि आप किस तरीके से रूट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, बट आप बहुत ही कलरफुल और बहुत ही घर में उनके एक बहुत हैप्पीनेस ऐड कर पा रहे हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Interesting. Yeah. If I have to display an artwork in my house, would I want it to have a dark theme, or do I need a happy piece there? Right. लेकिन एक जो कॉमन इंसान या जो आपके इनिशियल बायर्स होते हैं, उनको हैप्पीनेस ही पसंद होती है। Also, art is your own expression, right? You cannot create something just because others are creating, Right. or if it's selling.
You have to feel it. Right. Maybe in later point in life, if you feel like expressing something political, maybe you will also do it. But at this point in life, you are in a place where you want to create Happy. happiness, spread peace. So for a budding artist who wants to take up art as full-time career, what would be your advice, Alka? ये एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि मैंने किया है, कोई भी कर सकता है। बस इसमें बस इतना ही है कि आप अपने साथ में कितना लॉयल हो, आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो या आप अपने आप को सच बोल रहे हो। आप खड़े हो जाते हो हर दिन मिरर के सामने और आप ये बोलते हो कि हाँ मैंने बहुत कर लिया। अगर आपने बहुत कर लिया और आप ये बोलते हो बहुत हो गया, तो फिर तो बहुत हो गया, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप में वो एक अर्ज नहीं है, वो एक डिज़ायर नहीं है उसको बेटर और बेटर और बेटर करने की, तो बहुत मुश्किल है किसी भी फील्ड में। सिर्फ आर्ट फील्ड की बात नहीं है, चाहे आप फैशन फील्ड की बात कर लो, क्योंकि यहाँ पे लोग एक लेवल पे आने के बाद में हम एक स्पीड में भाग रहे हैं, वहाँ पे आपको अपना एक लेवल मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अगर वो लेवल आपने मेंटेन करके रखना है तो आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, आप उसमें कंजूसी नहीं कर सकते हो। जिस दिन आपने आलस कर लिया उस दिन से आप क्रिएटिविटी आपकी ख़त्म होने लग जाती है। क्रिएटिविटी उसी के पास ज़्यादा आती है जो हर दिन प्रैक्टिस करता है, और वो फिर मल्टीप्लाई होती जाती है। Amazing. Thank you. Thanks so much, Alka. This was a lovely conversation that we have never had before. Thank you so much, and all the very best for your World Art Dubai exhibition. Thank you, Vinod. And thanks for representing India here. I'm so glad. I'll come and see you in the gallery. Yeah, sure, please. And हमें फिर और मिलते रहना चाहिए, हमें भी कुछ साथ में करना चाहिए। Definitely. You come visit Dubai very often. This is a lovely place. I love this city. And Please I'll come. invite you to come and visit Jaipur. क्योंकि जयपुर में आपको इतना टेक्सटाइल पे इतना वर्क मिलेगा और आप इतना आपको नए बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। Definitely. I will definitely visit your Jaipur studio. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.